हिस्ट्री प्रेजेंट करता हूँ। तो जी मैं 2 हिस्ट्रीज करना चाहूंगा आज। जी एक ये एक आपके बाद कोई और वॉलंटियर होगा उसके साथ। जी पहली हिस्ट्री ये है, a patient age 35 years, para 2+2, यस complains of post-coital bleeding for last 6 months. यस On examination, pelvic examination, cervix looks healthy. यस Now proceed. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर अत्तर। मैं दोहरा दूं कि काफी है? मैं दोहरा भी देता हूँ। एज 35, para 2+2, post-coital for 6 months. You have done pelvic examination on speculum, cervix looks healthy. चलिए। Assalamu alaikum. My name is Dr. Atta. I am one of exam candidate. First of all, I will proceed with the history. I will ask the relevant information which was missing in the scenario. The 35 years patient. I will proceed her name, husband name, and her residence. Now coming to the her presenting complaint, that is. मोहतरमा फेल हो चुकी हैं ऑलरेडी। मैम बस सर ये 2 questions and then I will proceed to the presenting complaint. एक मिनट दोहरा लीजिए। Yes sir. जब मैंने ये कह दिया, कितनी दफा मैं कह चुका हूँ आप लोगों से। Yes sir. आपने फोकस रखना अपने आप को, तो उसके लिए कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस तो ठीक है। Yes sir. I introduce myself to the patient. Then I will ask her history, especially focused on to this problem. Her presenting complaint. जो यही प्रॉब्लम है ना उसकी जो भी है। Yes तो sir. फिर जब आपने ये कह दिया फोकस्ड, इसका मतलब आपने उसका फिर ये नहीं पूछना, मैं नाम पूछूंगी, काउंट का नाम पूछूंगी, और ये वो ऑक्यूपेशन पूछूंगी, ये पूछो जनरल हिस्ट्री। इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि आप वो सारी हिस्ट्री पूछेंगी। Yes sir. तो इसलिए आपका वक्त बचेगा। आपने 7-8 मिनट में इस पेशेंट की कंप्लीट करके, ट्रीटमेंट कंप्लीट करके फिर घर जाना है। Sir, can I say that I will take the biodata of the patient just. बस बायोडेटा नहीं, I will take her complete history, especially focused on to her presenting complaint. यार मैं फिर टाइप करता हूँ, फिर दोबारा शुरू करते। ये पेशेंट फरमाइए। I will ask in her history that for how long she is having this complaint, that is postcoital bleeding. And मेरे अल्फाज नहीं दोहराए। I'll take her complete history, especially वो कहे ना, कंप्लीट का लफ्ज कहेगी तो एग्जामिनर को समझ आएगा कि आपने वो सारा कुछ पूछना है। ठीक है। आपने कहा टेक हर हिस्ट्री, सर कब से ये प्रॉब्लम है, यहाँ से शुरू स्पेशल हिस्ट्री। एग्जामिनर को ये बताना है, आप बाकी हिस्ट्री भी पूछेंगी। ओके। उसके लिए आज टेक हर कंप्लीट हिस्ट्री। कंप्लीट का लफ्ज कह रहा है कि सब कुछ पूछेंगे जो पूछना चाहिए। कंप्लीट हिस्ट्री। फिर बोलिए, I will ask that for how long she is having this complaint. फिर नहीं बोला तुमने। I will take the complete history of the patient. And then I will proceed to the specific history which is related to the her presenting complaint. बिल्कुल। I will take the complete history of the patient and then I will proceed to the specific history related to the complaint. Okay. Then I will ask about the episode, that how long she is having this complaint. Either it is associated with any other complaint, like she is having post vaginal bleeding. For heavy post vaginal bleeding का क्या मतलब?
she's having postcoital bleeding. So is there any associated other symptom like intermenstrual bleeding, or there is any other irregularity in the menstrual cycle? Are their menses are regular or irregular? And is she having the heavy menstrual bleeding if they are regular? And the complaint of postcoital bleeding, is there any history of discharge, provisional discharge? And it's if discharge is present, then its associated features, and for its association, it's her menstrual cycle. And then I will ask about the postcoital episodes, that whether it takes every time or only once or twice in the month. Then I'll ask about the other complaints, like is she having any urinary or bowel complaints with it? And will ask about any itching or burning sensation in the vagina or vulva. And I will confirm her last menstrual period date. And I will ask about any test she has done before coming to me, like pap smear or any other investigation, blood investigation or ultrasound has she done. And then I will ask in her history about any is she any addiction of smoking or any hookah habit. Then I will ask about her personal medical or surgical history, that is there any specific ना condition. एक मिनट यहाँ रुक जाइए। Yes. मैं आपको बताता हूँ कि रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे पहला डायग्नोस हमारा कार्सिनोमा सर्विक्स है। Yes sir. रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो सारे आपने हिस्ट्री में बताने हैं। Yes sir. अब OBS हिस्ट्री में भी उसके काफी रिस्क फैक्टर हैं, लाइक उसकी पैराटी पैरा 2 जो 2+2 है, और उसकी जो डिलीवरी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है, सिजेरियन सेक्शन। उसका इसमें क्या तल्लक है? सर वो जो डिलीवरी है उधर हार्मोनल चेंजेस, मल्टीपल प्रेगनेंसी अगर कोई होगी उसकी, और मल्टीपैरिटी। अगर वगर तो है ही नहीं, मैंने बताया आपको पैरा 2+2 है। Yes sir, I will ask about multiple pregnancies, history of multiple pregnancies. And पता है बाबा आपको ये पैरा 2+2? sir twins हैं, one set of twins। जी बात यह है कि यहीं से पता चलता है ना पास फेल का। Yes sir। आपने फोकस ऑन टू पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग जब आप Yes ये sir। कह दिया, तो फिर आपने वो सवाल पूछने हैं, क्योंकि यहाँ पे इस एज ग्रुप में पहला डायग्नोसिस है सर सर्वाइकल डिफरेंशियल और सर्वाइकल एक्ट्रोपियन, सर्वाइकल पॉलिप। एक्ट्रोपियन के बाद ध्यान रखिए, आपने हिस्ट्री में करना है कि पॉसिबिलिटी ऑफ सीए सर्विक्स है कि नहीं है। यस सर, रूल आउट करनी है बिकॉज़ नॉर्मल हेल्दी लुकिंग सर्विस है। वो जी वो रूल आउट नहीं हुई ना, कमाल करती हैं। तभी तो मैंने आपको ट्रैप किया इसमें कह के सर्विक्स लुक्स हेल्दी। इफ सर्विक्स लुक्स हेल्दी तो सीए सर्विक्स रूल आउट हो गया। नहीं सर, फिर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे पैप स्मीयर। तो नहीं नहीं यस सर। एक मिनट, तेरा सुपरवाइजर कौन सी लेडी विलिंगटन में? सर अरशद चौहान। हैं? अरशद चौहान। तो फिर इस तरह से बातें करती है अरशद चौहान, गलत करती है। ऐसा चलो, और अरशद चौहान के पीसीओ पास हुए हैं तो तुम ऐसी बातें करती हो? नहीं 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 नहीं, हमारा ये पहला पॉइंट, इवन इफ द सर्विक्स लुक्स हेल्दी, इस एज ग्रुप में पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग, हमारा पहला डायग्नोसिस सीए सर्विक्स। यस सर। उसके लिए आपने हिस्ट्री में जो एग्जामिनर को बताना है वो ये सवाल है, रिस्क फैक्टर्स सीए सर्विस के क्या है। नंबर 1, इन्फेक्शन विद एचपीवी, वो तो हम पूछ सकते। यस, वो तो टेस्ट पे करेंगे। यस। फिर एज ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, ओके। फिर हिस्ट्री ऑफ, आपने बोला वजाइनल डिस्चार्ज, हिस्ट्री ऑफ एसटीआई, आपने हुक्का बोला, स्मोकिंग, एनी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड डिजीज लाइक डायबिटीज एंड कोई भी इम्यूनिटी जिसमें कम हो जाती है, एसएलई वगैरह। यस। फिर हस्बैंड
यहाँ पे हम we take it for granted husband is circumcised Okay. और फिर मल्टीपल पार्टनर्स, क्या ये पहली Multiple क्या? Yes, sir. ये है सवाल. Yes, sir. तो मैं I'll introduce myself. I'll take detailed history, especially focused on to Abul. I will introduce myself and then I will take the detailed history, which is specially focused on her presenting complaint, that is postpartum bleeding. Very good, mashallah. Okay, I will ask about her this complaint, that for how long she is having this complaint, Good. its frequency in a month, and then is she having any associated complaint like vaginal discharge. I will ask about her menstrual cycle, regularity, irregularity. Then I will ask about the age at which she has first coitus, or I can ask about her marriage date, and I will ask about either if she's having it is her first marriage and it is her first marriage of her husband. Then I will ask about the history of any infection. Is she having any infection, vaginal infection, or is her husband having any infection? Then I will ask about any history of smoking or hookah. And then I will ask about any medical comorbidity like diabetes or any SLE, any systemic condition for which is taking medication. Good. I will ask again and again कहने के बजाय एक Okay. तो I will ask all this. Okay. क्योंकि I will ask examiner के कान को भारी लगने लगता है. Okay. Then is her husband is circumcised, which is usually in our society is done. And then is their history of her husband first or second marriage. It will cover the aspect of multiple partner. ठीक ये हो गया. चलो ये हिस्ट्री होगी. फिर आगे Yes, sir. Then coming towards the examination, I will do the general physical examination to see any signs of pallor, anemia. बस कह दिया काफी. Bas theek, general physical examination. And then I will systemic examination of chest and abdomen. Chest and abdomen. Then I will proceed to the local examination. As on examination, it was said that cervix is looking healthy. I will more inquire about the size of the uterus, its mobility, and the adnexa fullness, and it will take the pap smear at the same time. माशाल्लाह, यहाँ this is 1+ point आपका हो गया. Yes, sir. Okay, good. I'll take pap smear. Yes. Then I will proceed to the ultrasound, abdomen pelvis, Good. in which I will see the size of the uterus and any adnexal or endometrial pathology, endometrial thickness. Size of the uterus इतना important नहीं. Any endometrial thickness. हाँ, endometrial thickness. जो कि दूसरा differential diagnosis हमारा होता है endometrial carcinoma. इसलिए I'll do TVS या ultrasound and look for thickness and regularity of the endometrium. ये कहना. Yes, thickness and regularity of the endometrium. Good. Then I will see any. Then I will also look in the abdominal scan for the liver for any mets or एक हो गया. any other condition. Then I will proceed on the report of the pap smear. Good. माशाल्लाह तुम जानती सब कुछ हो, लेकिन उसके जरा कहने का अंदाज हो. Then I will look for the report of my pap smear. Yes, sir. Then if the pap smear आ गया grade 3, what do you understand from that? Sir, on pap smear grade 3, it is showing that it is cervical intraepithelial neoplasia, which is involving the it is sin 3. बिल्कुल नहीं आपने गलत बोल दिया. सिंपली बोलना है
जैसे ग्रेड 1 हो तो उसमें की क्या रिपोर्ट होती है, 2 की क्या होती है, 3 में क्या रिपोर्ट होती है, आपने वो सर रिपोर्ट बोलनी है। डिस्करियोसिस के अकॉर्डिंगली बोलना। आई डोंट नो, आप बोलो, आप बोलो। मैंने बोला सर कि पैप स्मीयर इज क्लास 3। सर pap smear is showing the high grade dyskaryosis, which is showing high grade dyskaryosis, which was previously was नहीं severe dyskaryosis. नहीं, आपने ठीक तरह पढ़ा नहीं हुआ। Yes, sir. Class 1 is absolutely normal. Class 2 shows inflammatory cells. Class Okay, okay. 3 Panic shows, love. Okay, sir. Okay, shows some malignant or suspicious cells. okay, okay. Class 4 plenty or abundant malignant cells. बस ये बोलना। Okay. तो पैप्समियर में क्या होता है? क्लास 1 में 2, 3, 4 बोलो। Class 1 is normal. हम्म, Class 2 is showing inflammatory cells. हाँ, And class 3 is showing malignant or suspicious looking cells. few, And then few. few malignant and suspicious looking cells. And class 4 is showing abundant malignant and suspicious looking cells. हाँ, तो जब मैंने कहा आपको सर क्लास 2 का क्या कहा? ये Inflammatory. क्लास 2 का क्लास 2 इन्फ्लेमेटरी सेल्स आर अब डिस्कैरियोसिस। मैं मुश्किल अल्फाज नहीं कहना चाहता, तो आपको आसान करके कह रहा Dyskaryosis. हूं। तो मैंने आपने कहा ना मैं उसकी रिपोर्ट का इंतजार करूँ। मैंने कहा जी उसकी रिपोर्ट आ गई क्लास 3। Yes, तो sir. आप चलो फिर क्या कहोगे? Sir, then I will proceed to the HPV testing. नहीं, फिर उसका बोलो ना। इट मींस The class 3 slide showing the few malignant and or suspicious looking cells. ये कहो, इट मींस दैट। अब आगे Oh. चलो, फिर क्या करोगी इसका? Sir, then I will do the HPV testing if it is not done before. हाँ? HPV, high risk HPV testing if it is not done before. अच्छा, And then I will proceed to the colposcopy. कॉल्पोस्कोपी कैसे करते? So colposcopy is a test to see the magnified image of the cervix by applying solution. कितनी मैग्नेट? Sir, 6. It is 4 to 25. 6 to 40, 6 to 40, ठीक है, Okay. आपकी ठीक है। तो वो करके फिर आप इसकी जब करेंगी कॉल्पोस्कोपी तो फिर कैसे आपने कभी की है? सर देखी है करते हुए। हाँ, वही कर। Yes. तो फिर कैसे करते हैं? सर आपने colposcopy. हाँ करेंगे, उसमें 6 to 40 टाइम्स मैग्निफिकेशन देख लिया आपने, फिर Yes, क्या? sir. सर उसके बाद हम उसको अगर सस्पिशियस सर्विस वैसे ही नजर आ जाए कॉल्पो पे, देयर इज सेंड 1 2 3, तो हाँ। उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। इफ हाँ कर दिया, will apply, डॉक्यूमेंट कर दिया we फिर आप। will apply solution like ligol. हाँ, विल अप्लाई, ठीक कह रही हैं आप। क्या ठीक बोला आपने, फिर बोलिए। हेलो, गायब हो गई आप। सर शायद नेट का डिस्कनेक्ट हो गया उनका। हेलो हेलो हेलो। आ गए वापस? यस सर, यस हाँ जी, फिर आपने यस नोटेड। यस सर, मैग्नीफाई आई विल देखा, फिर क्या? sir, I will apply the acetic acid 3 to 5% कहाँ पे? on the suspicious looking area. अच्छा, फिर It क्या will होगा? stain the that area white, and the remaining normal area will remain normal. बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, ये हो गया। Yes sir. और एनीथिंग एल्स आप कर सकते हैं एसिटिक एसिड के अलावा? Yes sir, we can also apply the Ligol's iodine solution. उसमें क्या होगा? It will turn the normal looking area in the brown color because of the glycogen uptake, and it will stain the suspicious looking area in the various shade of yellow or नहीं, light. वो स्टेन ही नहीं होता, स्टेन वो- नहीं। Yes, it cannot be stained, or it can be हाँ, वो उसी तरह रह जाता है। yes sir. बाकी सारा ब्राउन हो जाता है, वो उसी तरह रह जाता Yes है, sir. अनस्टेन्ड रह जाएगा। चलो जी, देयर इज सम सस्पिशियस एरिया, फिर क्या करेंगे?
Sir, if it is colored, then we will proceed towards the if consent has been taken previously for the immediate treatment. If it is ना sin 3, क्या ट्रीटमेंट करेंगे? सर अगर ज्यादा हाई ग्रेड है तो हम बायोप्सी भी ले सकते हैं। कैसे और ले सर सकते? आप लेंगी बायोप्सी, ले सकते नहीं। जो यस एसिटोवाइट एरिया है या उसकी ल्यूकोलाइटिस पे अनस्टेड एरिया है, उसकी मैं बायोप्सी लूंगी। ये सर कौन बायोप्सी उसकी लेते हैं एरिया की? हाँ, सीधा कौन पे मत जा, सर कौन पे सीधा पंच बायो सीधा। हाँ, सर पंच बायोप्सी। फिर सुन लो, फिर मैं यस सर। पूछूंगा, यस सर। tell me various types of biopsies which you can do at that area. So we can do the punch biopsy, which will just एक तो ये कर सकते हैं आप। yes. Sir, there is cone knife biopsy. कौन तो आखिरी है, उससे पहले Punch biopsy and laser laser. वेरियस बायोप्सी सुन लीजिए आप सब। जब आपसे Yes, पूछा जाए कैसे लेंगे बायोप्सी, yes नंबर sir. 1 तो बोल दिया पंच, नंबर 2 एज से बायोप्सी, नंबर 3 Yes, सारा स्क्वेमोकोलुमनर जंक्शन एरिया एक्सरसाइज कर ले, सर्कुलर बायोप्सी। नंबर yes sir. 3 नंबर 4 है फिर ये आप कौन पे आ जाए, एक्सcision बायोप्सी भी एक कहते हैं बीच में, वो नहीं मैं डालता। ये Yes, 3-4 नाम बोलने हैं आप। yes. Punch, edge, circular. take a punch, I can take a circular biopsy, whole extracolumnar junction, or I can take excision biopsy, जहाँ पे वो एसिडोवाइट एरिया सारे को काट के निकाल लूंगी, और आई कैन टेक कोन बायोप्सी। And perform. चलो, बायोप्सी Yes, पे sir. कंफर्म हो गया कि उसको CIN है 3 CIN अस्सलाम वालेकुम सर। Yes, के उसको synth. कार्सिनोमा इन सिटू है। Yes, sir. ये फिर क्या करेंगे? Sir, carcinoma in situ can be treated by two methods: ablative techniques or excisional techniques. Both When you say excision, what does that? excisional techniques take the whole specimen, Whole- so we can do Whole histopathology. specimen of what? Whole specimen of the suspicious area of the cervix. हाँ, वो तो आपने कर दिया, Yes, एक्सीजन sir. बायोप्सी। Yes, sir. तो फिर क्या करेंगे? Sir, we will do that. We will examine that sample, that whether it was complete, margins were free of that cancer. Very good, माशाल्लाह। If margins were free, there is no need further treat. We just follow that patient. If गुड गुड। तो yes, sir. ये बायोप्सी कोई भी करेंगे, अगर उसमें कार्सिनोमा स्टेज 3 है, CIN 3 है, Yes, तो sir. फिर आपके पास से 1-2 की तो कुछ भी नहीं करना, 3 Yes, है, sir. उसके बाद चॉइस है यहाँ से इधर थोड़ी सी जाइए, if it is Yes, CIN 3 or CA cervix or yes, sir. invasive CA cervix, ये भी तो possibility हो सकती है। Yes, sir. Then I will discuss with the patient With the possible multi. Yes, sir. Yes, sir. possible यहाँ पे, क्योंकि अगर कुछ और नहीं करना फिर तो डिस्कस क्या फॉलो अप, लेकिन अगर कुछ Yes, करना है आई डिस्कस possible treatments with the patient and yes, then decide what should be done. तो yes, sir. उसके अगर कार्सिनोमा इन सिटू है और वो टोटली निकल गया है, उसका तो सिर्फ फॉलो अप करना है। Yes, sir. अगर नहीं निकला तो उसकी आप सिर्फ डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स डिजायर आप उसकी एक्सीजन कर सकते हैं, फिर ट्रैकेक्टमी कर सकते हैं, Yes, sir. या Trachelectomy. Yes, ट्रैकेक्टमी कर सकते हैं, yes, sir. सिंपल ट्रैकेक्टमी कर सकते हैं, Yes, लेकिन sir. अगर इन सिटू है। बट इफ इट इज लेट्स से कि ये निकल आया इन्वेसिव कार्सिनोमा, फिर क्या करेंगे? Sir, if it is an invasive carcinoma, I will first involve the multidisciplinary team. Will consult with the oncologist, and then I will do the further testing. That is MRI.
to see the extent of the disease. And according to that extent, there are procedures. यहाँ पे आप फेल हो, चंगी भली पास होंगी हम फेल हो। बड़ी सिंपल सी कार्सिनोमा सर्विक्स है। पहली बात तो आप मल्टी डिसिप्लिनरी तक जानते पहले आई वुड लाइक टू स्टेज दैट डिजीज। Yes, a stage disease with आपने तब स्टेज का नहीं बोला, stage by clinical and then MRI, EUA and MRI. क्लिनिकल से ही है या पीवी या EUA। Yes, sir. So I like to stage the disease. Yes, sir. Then discuss with the patient possible treatments. फिर वो जब पेशेंट ड्रॉप करती है कि मैंने ये करवाना है, फिर मल्टी डिसिप्लिनरी आएगा। Yes, sir. उसके स्टेजिंग, कंसल्टेशन विद द पेशेंट, ये तो Yes. आपने करनी है। Yes, sir. पेशेंट को आपने बताना है कि ये 3-4 पॉसिबिलिटीज हम आपका कर सकते हैं। Yes, sir. बोलिए। चलो, अगर ये कार्सिनोमा इन्वेसिव सीए सर्विक्स आ गई रिपोर्ट, फिर क्या करेंगे आप? Sir, then I will do the staging of this patient by complete examination under anesthesia, and I will discuss this staging with the patient and will ask about her treatment options. And then I will tell her ask, about I will tell her various about options. various options, and I will involve the multidisciplinary team at this point. Let's say she has got stage 1A. Yes, sir. What are Stage 1A is the stage which only confines to the cervix with no extension to the vagina or parametrium and uterus. It has further two. It is the microscopic. It is a microscopic invasive disease diagnosed by microscopy. It is diagnosed by microscopy, which is further divided into 1A1 and 1A2 onto the depth of the invasion, which should be less than 5 mm. तो ये लफ्ज पहले बोलना था बाबा। Yes, sir. Microinvasive disease involving the cervix. And it could be less than 5 millimeter or more. If it is more than 5 millimeter, then it is stage 1B. B. Yes, ये बोले, ऐसे बोले। Yes. Yes, sir. तो इनकी फिर 1A और 1B की आगे ट्रीटमेंट बोलिए। If it is stage 1A, I will suggest that patient should have hysterectomy or whatever. If it is 1B, तो जो भी है उसका ट्रीटमेंट फिर आप इस तरह से बताएं। Yes, sir. Sir, one. फिर के जी रिपोर्ट आ गई कि इसको सीए सर्विक्स है, इन्वेसिव कार्सिनोमा। Yes, sir. फिर आप क्या करें? Sir, I have done the staging, which shows 1A1. I will do the staging. You have not done staging. Sir, अभी बताई थी ना, I will do the staging, and according to I will do the staging under examination under anesthesia. वो हो गया कैसे? I'll do the staging. Yes, and then I will discuss the patient, the management of this stage. The stage 1A1 can be treated if it is without lymphovascular invasion by simple. She has done her family. I will ask about the option of the hysterectomy. And if she wants to preserve her fertility, I will proceed towards. Yes, if she denied the hysterectomy, then I will tell her about. I need to refuse the hysterectomy. Then I will tell her about the fertility preserving procedures like cervical colonization. And बस पास हो गया, चलो खत्म। नेक्स्ट वॉलंटियर कौन है? हेलो हेलो हेलो।
Any volunteer for second case? सर नहीं। मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ। सर मोमना डॉक्टर मोमना, कहाँ से बोल रही हो? सर लाहौर से। आज लाहौर वाले तेज हो गए ना, खैरियत? क्या कौन से अस्पताल से? सर ट्रेनिंग मेरी शेख जायद हॉस्पिटल की है। आप तो पहले लेडी विलिंगडन दी सी, हो तो कोई एडी ब्रिलियंट नहीं सी। चलो तेन भी वेख लेने। चलो जी, मोमना आपने इम्तिहान दिया है कि नहीं दिया अभी तक? सर रिटर्न क्लियर है। अच्छा चलो, अभी देना है अगले महीने। जी सर। बाबा आप लोग फोकस किया करो। मैंने 20 दफा कहा है, जब आपको हिस्ट्री प्रेजेंट की जाए, एग्जामिनर कुछ 2-4 फीचर बताता है, इमीडिएटली देखो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। जी जब देख लिया आपने, फिर आपने कहना है मैं उसकी डिटेल हिस्ट्री लूंगी, पर्टिकुलरली वो जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने बनाया है उसके रेलेवेंट हिस्ट्री पूछनी है, फिर आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। आप शुरू हो जाते हो उसकी डिटेल ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, डिटेल गायनी हिस्ट्री, डिटेल फैमिली हिस्ट्री, डिटेल डिटेल डिटेल। बाबा आपका वक्त खत्म हो जाता है, 7-8 मिनट तो टोटल टाइम है आपके पास। ये अभी हमने आपका के साथ जो डिस्कशन की है पूरा आधा घंटा की है। जी सर। आधा घंटा तो वहां इम्तिहान में नहीं है ना आपके पास। तो टॉक्स में ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट है आपके पास। 8 मिनट में जो भी है उसके एंड पॉइंट तक पहुंचना है आपने। वो इसी तरह पहुंचेंगे अगर आप फोकस टू द प्रॉब्लम रखेंगे। अगर सारा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, पेलोर, लिम्फ नोड्स और फिर दांत, फिर हार्ट, फिर लंग्स, ये सारा कुछ करते रहोगे, उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता आपको। क्रेडिट मिलता है जो आपके मुंह से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकलती है। सो आपका कहना ये होना चाहिए कि I'll introduce myself and take detailed history, especially or particularly related to her problem. फिर वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आपने उसके रिलेटेड सवाल पूछने हैं, उसके रिलेटेड फिजिकल एग्जामिनेशन करना है और फिर उसी तरफ ही चलना है हमें। फिर वो 7-8 मिनट में आप पूरा कर सकेंगे। चलें डॉक्टर मोमना, आपका केस है एज 54, जी सर। मेनोपॉजल फॉर 4 years, ठीक है सर। complaints of postmenopausal bleeding for यस सर। 1 month। 1 मंथ। हाँ, ठीक हो गया 1 सर। महीने से अब मुझे ब्लीडिंग होने लगी है। और आपकी भी मुश्किल आसान कर दूं मैं। जब आप pelvic एग्जामिनेशन करेंगी, on speculum examination you see an ulcer on the anterior lip of the cervix। ठीक हो गया सर। Proceed। First of all, I will introduce myself to the patient. I will take the detailed history of the missing information, especially related focus to her presenting complaint. I will ask first I will ask about what is the pattern of postmenopausal bleeding and how many pads she is soaking. Then I will ask about any associated symptoms like any presence of vaginal discharge present with it. I will also take into account is there associated with pain, any urinary and bowel complaints, any history of anorexia, weight loss. Is there family history of any cervix and is there any family history of malignancy? Is she on any drugs and any medical or surgical history of significance, like any history of breast cancer, or she's taking any drugs, or any history of drugs like blood lowering agents. Then I will, after taking the brief history, I will proceed for the examination of the patient. If in the examination I will... सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ। देखिए इस पेशेंट में डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम बना लेते हैं।
They, It could be postmenopausal, it could be CA cervix, it could be endometrial हाँ, आहिस्ता चल, आपने बिल्कुल सही endometrial बोला। CA. एक मिनट आहिस्ता चल। आपने सही बोला कि अगर अल्सर है, पहला डायग्नोसिस ये सर्विक्स हो गया। जी सर। दूसरा डायग्नोसिस क्या हुआ? Endometrial CA बिल्कुल राइट। stage 2. और तीसरा कोई अदर Atrophic एनी कोई? vaginitis. ये मेन दो डायग्नोसिस है आपके। जी सर। हमें इम्तिहान में 3 से ज्यादा डायग्नोसिस भी नहीं बनाने चाहिए। तो अदर्स, अब सीए सर्विक्स रिलेटेड आपने सवाल पूछने हैं, सीए एंडोमेट्रियम रिलेटेड सवाल पूछने हैं, तो वो जी सर। पूरे नहीं हुए, वो पूरे नहीं हुए आपके सवाल। अब ये पेशेंट है 54 और आपको मैंने और तो कुछ नहीं बताया ना सिवाय पोस्टमेनोपॉज़ल। इसमें जी सर। सीए सर्विक्स रिलेटेड जो सवाल रह गए, इंफॉर्मेशन हिस्ट्री में आने चाहिए थे, वो आपको बोलने चाहिए थे। Sir, मसलन smoking history, parity. हाँ, Yeah. ये पैरिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्मोकिंग तो बात When her आती last pap smear was done. है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। लास्ट पेप स्मीयर कब हुआ था उसका? वेरी वेरी गुड। तो ये जो पहले मैंने इनसे आतका से किए थे सर्विक्स रिलेटेड, जी वो सर। सारी बातें आपने स्मोकिंग एक लफ्ज बोला। दूसरा, उससे पहले बोलना चाहिए पैरिटी, Parity. है ना? और जी सर। फिर वो मेडिकल डिजीजेस ये वो पूछ के फिर एंडोमेट्रियम रिलेटेड 2 3 4 सवाल पूछिए आप। Any feeling of mass? Any feeling of mass? ना, मास तो बाद में आएगा, मास तो इतना एंडोमेट्रियम Any सीए में history होता। of any history of weight loss, anorexia? हाँ, गुड। और क्या? पहले हिस्ट्री पूछ, और Then पैरिटी के अलावा इस इधर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, obesity, diabetes. whether she is nulliparous Yes sir. है कि नहीं, whether she has taken any hormones। जी सर। और उन्होंने सीए सर्विक्स में फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर बोला था, वो शायद सर्विक्स में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी एंडोमेट्रियम में इंपॉर्टेंट। जी। तो इस तरह से ये 3 4 सवाल पूछने हैं। अब एचआरटी पे है कि नहीं है, यस सर। तो आई टेक यू बैक, क्योंकि आप लोग इस बात की प्रैक्टिस नहीं करते और यहीं पे फंस के रह जाते हैं, तो आगे जो असली डिस्कशन है वहां तक पहुंचते नहीं, फिर एग्जामिनर आपको पूरे नंबर नहीं देता। ठीक है। तो फिर बोलिए कि जी। First of all, I will introduce myself to the patient. I will take the detailed history, especially related focus to her presenting complaint. Keeping in mind the provisional diagnosis of CA cervix and endometrial CA, I will ask my patient regarding her parity. ये नहीं, प्रोविजनल डायग्नोसिस ना कहिए इसको, अगर कहना है तो कहिए द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। Differential diagnosis. Sorry, sir. Differential diagnosis in mind. I will ask about since how long she has been having this episode. How many pads she is soaking. Is there associated PV discharge? Is there any history of weight loss, anorexia? Any history of urinary and bowel complaints? Is there any feeling of mass? Any is she on any drugs? Any is there any history of diabetes, hypertension? Then I will also ask her, is she on any HR, is she taking any hormonal replacement therapy when her last pap smear was done? Then our OBS history, I will ask about the parity and any complications associated with it. I will, in the personal history, I will ask about her smoking history, any history of, सर इसमें multiple partners पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, whether she has been married more than once. Whether she has been married more than once, then is she taking any OCP, hormonal replacement therapy आ गई, smoking आ गई, multiple parity आ गई, Or और history of cancer in the family. and family history of malignancy, or any drug history, is she on and taking any blood thinning agents or not, or is और there up any till history of now bleeding disorder? 1 महीना हो गया, up till now the treatment she had. And what treatment she has taken, and was she was investigated before or not? चलो जैसा फिर आगे चलते हैं। देखिए आपने एग्जामिन किया,
pelvic examination पे you see an ulcer on the anterior lip of the cervix. Proceed. First of all, sir, examination में भी बताऊं ये तो बस वो हो आगे गया चलें? ना, बोल दिया Yes. कि I'll do just I will first of all I will explain my patient. Sir, I will go for the investigations. नहीं ऐसा you want to pass, you want to score well, तो आप कहिए कि अगर वो cervix पे अल्सर है तो I would like to find out a visual detail of that ulcer. मैंने Yes, सिर्फ I अल्सर would. बोला, Yes, sir. तो आप जाने चाहेंगे पहले on physical examination if there is ulcer, उसकी location, उसका size, Size, उसके margins, shape. whether it bleeds on touch or not, और उसके इर्द गिर्द की induration. ये 5 चीजें आपने बोलनी है. ठीक है. So I'd like to get more information about the ulcer, उसकी location, उसका Size, size, shape. उसके margins, उसकी base, उसके surrounding areas, जी सर. whether it bleeds on touch or not. ये 4, 5, 6 होगी. अगर आप ये बोलेंगी आप इतने पास हो जाएंगी, क्योंकि हर जैसा आपने नहीं बोला कोई नहीं बोलता. ठीक है. तो इम्तिहान में अगर किसी जगह आपको अल्सर का लफ्ज कहा जाए तो आप फौरन, क्योंकि ये जितनी बातें बोली हैं मैंने ये फिजिकल एग्जामिनेशन पे ही नजर आएंगी ना आपको. जी सर. सर वो मुझे लगा कि मैंने बस आगे चलना है, एग्जामिनेशन नहीं करना. नहीं, अल्सर का लफ्ज मैंने बोल रहा. जी जी. अल्सर की फर्दर डिटेल आपने पूछनी है एग्जामिनर से, या ठीक हो आप गया. खुद कर रही हो तो आपने अगर पेशेंट आपको नजर आया उसमें अल्सर तो आपने ये 6 चीजें बोल के बतानी है एग्जामिनर को. I see an ulcer on the anterior lip of the cervix. Size is 1 centimeter by 1 centimeter. And its edges are raised or not raised. Its base is covered by necrotic material or granulation material. Surrounding areas में induration है कि नहीं है. और जब मैं एग्जामिनेशन कर रही थी on touch whether it bled or not. Yes sir. इस तरह से ये बताएंगे, यहीं पर पास हो जाएंगे आप. ठीक हो गया सर. क्योंकि आपकी साथी ना आपने बोला है ना कोई भी नहीं बोलता. ठीक हो गया. तो जब मैंने कह दिया there is an ulcer on the anterior lip, आप कहेंगे मैडम could you tell me the detail about that ulcer? वो कहेंगे Yes, what do sir. you mean? What do you mean? I would like to know the size, shape, site, margin, base, base of the ulcer, then surrounding areas, and whether it is bleed to touch or not. फौरन आप पास. क्या लगा हुआ? Then I will also like to do the bimanual examination to see the size of the uterus, its mobility, any adnexal involvement or parametrial involvement. Involvement ना बोले, induration बोले. Induration. हाँ जी, चले. ये हो गया. And जी सर. Let's say कि ये अल्सर जो है उसके इर्द गिर्द कोई थिकनेस नहीं, it doesn't bleed on touch or covered by necrotic material. बोले. Then I will like to do the pap smear if it is not previously done. And fix and send for cytology. Then after bimanual exam, then I will do the bimanual examination. In the bimanual examination, I will look for the size of the uterus, its mobility, any adnexal involvement, any parametrial involvement. Then and if it is involving, then I will also like to do involvement. You take it for granted कि कैंसर है involve कर रहा है. मैंने आपको correct किया था involvement की बजाय लफ्ज induration कही. Induration, any induration present. Whether there is any induration surrounding the uterus. Yes, and ideally, mobility more important than anything. Yes, and whether it is antiverted or not. Ideally, the per-rectal examination should also be done, but as it is a discomfort, as it causes discomfort to the patient, so I will skip it this part in the exam setting.
ना ना ना, ऐसा ना करें। I'll counsel my patient कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, तो फिर मैं पीआर करूंगी। पीआर करोगी तो उसमें क्या देखना पसंद है? I will like to see the rectal involvement. Is there any involvement of the rectum or induration involvement or any thickening? आप आप लफ्ज बार बार इन्वॉल्वमेंट Induration. यू टेक इट फॉर ग्रांटेड के ये पक्का है कैंसर सर्विक्स है। Any induration. तो फिर मैं गुस्से में आके आपसे वापस ले आऊंगा एज एग्जामिनर। मैं कहूंगा ये अल्सर की वजूहात बताओ, व्हाट काइंड ऑफ अल्सर्स देयर कैन बी ऑन द सर। But rectum में आप भी induration बोलो। फिर एक मिनट सुनो, आप उसकी एक दो टाइप्स ऑफ अल्सर बोलोगी, फिर मैं उसका जो तुमने नहीं बोली उसका पूछ लूंगा और आपका वक्त जाया हो जाएगा, आप पहुंचेंगी नहीं। तो इन्वॉल्वमेंट ये लफ्ज आप जाके ना, जहां तुमने जेवर रखा हुआ है ना बैंक में लॉकर में, वहां जाके इन्वॉल्वमेंट लिख के बंद कर आना। जी सर, बिल्कुल है, रखा है कि नहीं रखा है लॉकर में? रखिए सर। तो वाह, तू बोलता है ना लॉकर, तेरा लॉकर खोल लेना गवर्नमेंट ने, ਉਹਦੇ ਚੋਂ डॉलर काट लेने। सर पर रेक्टल में भी इंड्यूरेशन बोलूं? एनी इंड्यूरेशन हाँ प्रेजेंट बाबा, और abnormal? नहीं पता ठीक चलता हो गया, है ठीक हो गया। उसके साइड पे इंड्यूरेशन गोइंग टुवर्ड्स सेक्रम। जी सर। Then चलो after this, I will like to investigate the person by I will like to investigate the case by asking her baseline investigations to have a look on the general appearance of the patient, तो वो and छोड़। and then I in the like to have specific investigation in addition to general investigation I'll do this। आप and in हीमोग्लोबिन के वो कह के अपना वक्त ना जाया करो। ठीक, and the specific investigations, I would like to know the abdominopelvic scan to know the status of the myometrial ectotexture, endometrial thickness, any adnexal pathology, any presence of ascites, and any mass or growth present, गुड, and the status of the liver and kidneys. वेरी गुड, चलो हो गया जी। फिर क्या करो? Then I will like to review the pap smear report if available. वो आगे रिपोर्ट के वो उसमें सिर्फ इन्फ्लेमेटरी सेल्स नजर आए। Any endometrial biopsy report available? आपने एंडोमीट्रियल बायोप्सी तो की नहीं थी, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ एंडोमीट्रियल बायोप्सी जो है करेंगी रूटीन बेस में। पहली बात मुझे बता दें सर, डिपेंडिंग ऑन द स्कैन पे एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी आई है हाँ पोस्ट मेनोपॉजल रीडिंग में मैं करूंगी। बिल्कुल, ये जवाब आपका सही है। तो हम्म, मेरे उस पे आपने तो की नहीं थी एंडोमीट्रियल बायोप्सी, आप कहिए कि ये अगर उसके स्कैन में एंडोमेट्रियम इज थिन फिर कोई जरूरी नहीं है। यस सर। हाँ चलो जी, तो फिर ये सारा कोई नॉर्मल है। चले आगे चलते। देन आई विल भी नॉर्मल है और एंडोमेट्रियम भी थिन है वगैरह है वगैरह। हो गया सर। then I will explain my patient then I will explain my patient that as the pap smear report is having inflammatory changes, so I will like to repeat it after 6 months and treat the vaginal discharge if present, and तो फेल हो गई गुड़िया, बिल्कुल नहीं। हाउ कैन यू इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ दिस अल्सर जस्ट के उसकी पैप स्मीयर कर लिया तो वो नेगेटिव है तो वो काफी है? नो वे, नो वे, नो वे। ये पेशेंट है 54 ईयर ओल्ड पोस्ट मेनोपॉजल, सर आपने एक मिनट, उसको ब्लीडिंग के साथ आई है। अगर अल्सर देखने में जो मलिग्नेंट फीचर्स नहीं भी है, फिर इस पेशेंट में इसकी बायोप्सी होनी चाहिए। yes sir, colposcopic biopsy। नहीं, कॉल्पोस्कोपी की क्यों जरूरत है? वो मैक्रोस्कोपिकली विजिबल है। ठीक हो वाई गया। कॉल्पोस्कोपी? ओके, बायोप्सी पंच बायोप्सी सर। ठहरिए ठहरिए,
पर ये पंच का लफ्ज बोल के तुम फंस गई हो। आप ये कहिए कि अगर ये सारा कुछ नॉर्मल है, स्टिल आई लाइक टू डू बायोप्सी ऑफ दिस अल्सर। फिर एग्जामिनर पूछेगा कौन सी बायोप्सी, मैंने 4-5 नाम दिए हैं आपको, उनमें से कोई बोलिए। पंच बायोप्सी नहीं होती, आम पॉपुलर नहीं है, वो जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप इसकी अल्सर की हमेशा मार्जिन की बायोप्सी लेते, ठीक हो क्योंकि गया अगर सर। वो malignant है, malignancy is most active at the margins। ठीक हो गया। जो बेस होती है वहां नेक्रोटिक मटेरियल आ जाता है, नेक्रोसिस हुआ होता है सेल्स का, वो जरूरी नहीं है। तो whenever you take a biopsy of ulcer, you always name it, I'll take a मार्जिन wedge बायोप्सी। biopsy from the margin of the ulcer। ठीक हो गया। सर अब पंच आगे बायोप्सी फ्रॉम द मार्जिन्स। पंच नहीं, नहीं, वेज बायोप्सी। wedge। पंच तो बड़ा ही कमजोर बायोप्सी होती है, वो जनरली नहीं, कम से कम वेज बायोप्सी फ्रॉम द अल्सर। अब ये कह के फिर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, एग्जामिनर कैन टेक यू राइट और लेफ्ट। एक तो वो कह देगा कि ये सर्विक्स है, यस सर। इन्वेसिव कार्सिनोमा सर्विक्स। यस सर। फिर आप उसकी तरफ चल पड़ेंगे जो अभी भी आतका ने मुझे बताया कि जी जी सर। फिर मैं उसकी स्टेजिंग करूंगी, फिर उसके मुताबिक काउंसल करूंगी, फिर मल्टी यस सर। डिसिप्लिनरी बनाऊंगी, फिर ये हो जाएगा। वो हमने ठीक अब हो गया। बात कर ली हुई है। जी अब सर। मैं आपको लाता हूँ कि आपने बायोप्सी की है, वो आ जी गया सर। कि ये क्रॉनिक अल्सर है। फिर बोलिए 10:25 हो गए। जी। क्रोनिक अल्सर। सर इस बाथरूम में से ले नो देखा ना, नॉर्मल सेल्स। देखा ना, फंस गई ना। आपने ये सर्विक्स सोचा हुआ था, वो उधर तो फटाफट बोलती ऐसे और यस सोची सर। पे। सर क्रोनिक अल्सर विद नॉर्मल सेल्स। क्रॉनिक अल्सर का मतलब क्या होता है? नॉन मैलिग्नेंट क्रॉनिक इन्फेक्शन है। Yes, sir. Sir, I will explain my the diagnosis to the patient and explain that we will give her that it could be due to atrophic vaginitis or it could be due to presence of UV prolapse due to the dependent. Uh, हाँ, देखा ना। uh, हाँ 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 हाँ। अब यूवी प्रोलैप्स का लफ्ज हमें बोलना चाहिए था जब मैंने पेल्विक एग्जामिनेशन बोला। yes, sir. तो आज की टिप, अगर आपके पेशेंट को एंटीरियर लिप पे अल्सर है तो आपने बोलना है ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन, बाई मैनुअल एग्जामिनेशन, फर्स्ट इज that I'll ask the patient to bear down and exclude presence of UV prolapse। Yes, sir. Yes, आपने sir. नहीं बोला ना। नहीं सर। और आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते तक नहीं पता चला कि आपने क्या गलती की है, यस सर। और आप इस पे फेल हो गई, क्योंकि यस हमने सर। अक्सर कैंसर सर्विक्स उधर ही चल पड़े। यस सर। तो आज की बड़ी टिप आपको ये है यस सर। कि ए पेशेंट और पोस्ट मेनोपॉजल जब आएगा, चाहे आपको मैंने दे दी फाइंडिंग कि एंटीरियर लिप अल्सर है, कि ऑन यूवी pelvic exam प्रोलैप्स। first I will like to rule out uterovaginal prolapse। यस सर। ये चार लफ्ज नहीं बोले तो तुम्हारा स्टेशन सारा खराब यस सर। क्यों ना। यस सर बिल्कुल। तो आप सब के अगर अल्सर सर्विक्स पे है, आपने ये बोलना है ऑन pelvic examination I like to rule out UV prolapse। बेशक उसकी डिटेल ना पूछो, जी सर। फिर आगे चल पड़ो। यस सर। अब इसमें अगर इसको इस अल्सर को क्या बोलते हैं कि किस तरह का डिक्यूबाइटस अल्सर? अल्सर। डिक्यूबिटस टाइसर नहीं, डिक्यूबिटस। ड्यूक्यूबिटस। डिक्यूबिटस अल्सर है, ये इस्कीमिक अल्सर होता है। यस सर। तो उसका फिर आपने ट्रीटमेंट बोल देना है,
जो हमने Yes, sir. BCO वार्ड में होता देखा है, आप पास हो जाना। Packing with atroplavin and glycerin. I'll advise a rest and keep the prolapse in place by packing antibiotic. Ceftriaxone is antibiotic, antiseptic. तो वो ऊपर की सरफेस को वो जो इन्फेक्शन है उसको ठीक कर देता है। वो 3-4 हफ्ते में अल्सर हील हो जाता है और बात खत्म हो जाती And है। advise patient to use pessarines in future. अब वो भी कही जा सकती है कि अगर पैक से नहीं रहता फिर रिंग पैसरी डाल देते हैं। वो तो हम टोटली उस डायरेक्शन में गए जिसमें नहीं जाना चाहिए था, प्रिज्यूम करके ये सीए सर्विक्स। Yes, sir. तो आज का आपको मेजर जो टिप मैं दे रहा हूं, नंबर 1 कि इस तरह की कोई भी पेशेंट सीए सर्विक्स की नहीं है, कोई फोकस्ड प्रॉब्लम है गायनी की, ऑब्स्टेट्रिक्स की, मेडिकल, कोई भी सर्जिकल, आपने कहना है आई विल टेक डिटेल्ड हिस्ट्री स्पेशली फोकस्ड ऑन टू दिस। Yes, sir. पहली टिप तो आपको ये है। नंबर 2, कॉल्पोस्कोपी थोड़ा सा आपने चूंकि कम देखी होती है, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे बताना है उसके। Yes, sir. तो उसकी एनलार्जमेंट कितनी है और फिर कैसे फोकस करते हैं, फिर उसमें क्या देखते हैं, और वास्कुलराइजेशन देखते हैं, लोकल टेक्सचर देखते हैं, और फिर वो एसिटोवाइट एरिया या ल्यूकोलाइडिन पे नॉन स्टेनिंग एरिया वो देख के फिर बायोप्सी कैसे, बायोप्सी की किस्में आपने बोलनी है, Yes, sir. और फिर उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। यहाँ पे आके आई एम सॉरी मोना, मैंने आपको मुश्किल केस इस तरह मुश्किल हो गया, वो मुश्किल तो था नहीं, मुश्किल Yes, sir. हमने बता दिया। वो इस तरह के हम सीए सर्विस की बात कर रहे हैं, ये बायोप्सी का सीए सर्विस होगा, सीए सर्विस का ट्रीटमेंट तो आपका ने बता दिया है, वो सारा Yes, हम बोल देंगे, हम पास हो जाएंगे। Yes, sir. मैं पोला जाए एग्जामिनर Yes, sir. है, आपने सारा वो मुकम्मल कर दिया, मैंने कहा जी बात यह है कि उसकी तो रिपोर्ट आ गई है कि वो मिलिगेंट है ही नहीं। Yes, sir. फिर आपके हाथ पांव ठंडे हो गए Yes, और sir. मसला आपको आपको सामने नजर आया, ये तो मसला ही गड़बड़ हो गई। सो आज की टिप आपको, आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो बनाए, पहले तो उसके रिलेटेड सवाल जरूरी हैं। जी. नंबर 2, अगर सीए सर्विस की बात हो रही है, ये ना भूलें कि वो अल्सरेटिव लीजन जो है दैट कुड बी नॉन मैलिग्नेंट। Yes, sir. वो याद रखिए, पहला नॉन मैलिग्नेंट, उसका सिर्फ एक लफ्ज कह देते, I'll rule out malignancy by biopsy and accordingly treat the ulcer, बस। Yes, sir. फिर आप आ जाइए सीए सर्विस की डिटेल में। अगर उस स्टेशन पे एग्जामिनर को कहा गया है आपने सीए सर्विस की डिस्कशन करनी है, फिर वो कर लेगा। वो वही बात होगी कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो डिपेंडिंग ऑन स्टेज। जरा आज ने स्टेजिंग अच्छी तरह नहीं बोली थी, वो फिर स्टेजिंग और सीए सर्विस अच्छी तरह दोहरा लीजिए। सर एक बात पूछनी थी, अगर सर पैप्स में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ जाती हैं, ये तो जैसे पोस्ट मेनोपॉजल थी, लेकिन अगर यही वाली पेरीमेनोपॉजल आ जाए और उसमें इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो, तो फिर सर पैप्समेयर का क्या करना है? फिर उसका ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन करना है? हाँ, फिर वही है। नहीं, फिर अगर अल्सर या लीजन नजर आती है उसकी बायोप्सी करनी, क्योंकि पैप्समियर इज नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ बायोप्सी। नहीं सर, अगर लीजन भी कोई नहीं है और सिर्फ इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आई हैं। हाँ, तो फिर बायोप्सी के इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं, फिर वही वो अगर प्रोलैप्स के साथ, अक्सर प्रोलैप्स के साथ होता है, प्रोलैप्स के साथ है तो वो जो भी है तो उसको एक्रिफिलेवन वगैरह जो भी बोली गई है उस अल्सर हीरो हो जाएगा। फिर प्रोलैप्स का हम सर्जिकल ट्रीटमेंट जो भी या पैसिव ट्रीटमेंट करेंगे, फिर उस तरफ चल पड़ेंगे।
सर उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि हम उसका कोई इन्फेक्शन वगैरह या कोई एसटीडी वगैरह है तो वो उसकी ट्रीट करेंगे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस में? STI अल्सर नहीं ना इस तरह का कॉज करती। ठीक हो गया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है, पहले तो वो जो 54 ईयर ओल्ड है, STI आर मोर कॉमन इन रिप्रोडक्टिव पीरियड। यस। STI जितना लेट होता जाता है वो एट्रोफिक लीजन्स हो जाती हैं, वो एट्रोफी ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट की वजह से इन्फेक्शन होती है, जिसको एट्रोफी को ट्रीट करेंगे तो इन्फेक्शन खुद ही ट्रीट हो जाती है। उसका अगर आप कहें तो अगला, आई लव टू डू दिस वजाइनल डिस्चार्ज, वेरियस टाइप्स, उनका ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह अगली दवा वो कर लें। यस सर। चलो अगली दवा वजाइनल सर एक डिस्चार्ज। मिनट। सर पास कर देंगे? हाँ पास तो मैं आपको बताता हूँ, मैं एग्जामिनर रहा हूँ 74 से 2007-8 तक, कितने साल हो गए? 33 ईयर्स लगातार मैं एग्जामिनर। तो उस पीरियड में जिनको मैंने पास फेल किया वो प्रोफेसर भी बन गई, वो मेरे साथ को एग्जामिनर भी बन गई, और मैं बाई वर्चू ऑफ माई एज वो कन्वीनर होता था। कन्वीनर का काम होता है सारे रिजल्ट लेके फिर टेबुलेट करके फिर पास फेल करना। एक लड़की फेल हो रही थी, बाकी सेक्शन में पास थी, तो मैंने उस जहाँ फेल हो रही थी उस एग्जामिनर से कहा, मैं क्या छोड़ो ना, ये छोटी सी बात पे फेल होती है, बाकी सारी जगह पास है, पास कर दो ना, पास कर देते हैं। तो मुझे कहने लगी, वो मेरे पास 5-6 दफा फेल हो चुकी थी, खुद कराची की थी। तो मुझे कहने लगे, सर जब मैं इम्तिहान दिया करती थी उस वक्त तो आप इतने नरम नहीं होते। मैंने कहा, मोहतरमा आपने मुझे एग्जामिनर साइड से देखा ही नहीं कभी, अब देखा है तो आपको पता चला है कि मैं वो उस तरह का एग्जामिनर नहीं हूँ जिस तरह आप समझ रहे हैं। तो जनरली स्पीकिंग मैं कोई ऐसा औखा एग्जामिनर नहीं सी, बल्कि ऑप्शन उस औखा करता सी। तो लेकिन वो उस बात को छोड़ो, एग्जामिनर कैसा है, अगर आप सही बात कर रहे हो, सही बात, तो चाहे कैसा भी एग्जामिनर है आप पास हैं। फिर कोई काम खा घर से इरादा तो नहीं करके आता ना कि आपको फेल करना जरूरी है। तो इसलिए आज के इस क्लास के बाद दोनों लड़कियां, आतिका भी मोमना भी, मोमना डिड बेटर देन आतिका, लेकिन दोनों पास हो सकती है, पास हो सकती है। और कर दो। चल अब तो 5 मिनट ऊपर भी हो गए, अगली दफा बजाय सर डिस्चार्ज किया। सर एक क्वेश्चन है जी पूछे। सर। सर्कमसिशन का सी सर्विक्स से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सेकंड पेशेंट का क्या? मेल सर्कमसिशन का उसमें सी सर्विक्स में क्या पैथोफिजियोलॉजी सर? सर्कमसिजन का भाई एक जमाना था हम समझते थे कि सर्कमसाइज हस्बैंड हो तो सी सर्विक्स नहीं होता। हमने बड़ा इसको बहुत हवा दी हुई थी, लेकिन फिर साउथ इंडिया में और टर्की में 2 स्टडीज हुई तो इंसिडेंस ऑफ सी सर्विक्स वाज ऑलमोस्ट सेम एज अनसर्कमसाइज्ड हस्बैंड। तो इसलिए सर्कमसिजन का इन प्रिवेंशन ऑफ सी सर्विक्स कोई खास रोल नहीं है। और चलो, फिर ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी थैंक मच, यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। फॉर कमिंग। मुझे तो बड़ा मजा आता है आप लोगों से बात करने, खासतौर आप लोगों को फेल करने में बड़ा मजा आता है। तो ऑल द बेस्ट। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी कुछ पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर भी नहीं, वो भी ये मेरा लेक्चर अटेंड करती हैं और कहती हैं, सर जब तुसी कह रहे हो ना फेल करके मैंने बड़ा मजा आता है, सानू बड़ी खुशी होती है। ठीक हो गया चलो सर।
Thank Best you, of sir. luck. All